Hey developers, welcome to Admin Debugger. Now we will do some resource and research. हम यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसोर्स देखेंगे, रिसर्च करेंगे और आपको बस देखना है कि रिसर्च कैसे करते हैं. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल थिंग. एआई के साथ में रिसर्च करा जाएगा और देखा जाएगा कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है. लेट्स सी. La 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 la. Okay, this software as a service. This all are the category programming languages. Popularity score, versatility and relevance score. I did some research previously where I tried to figure out which language has its popularity, versatility and relevance. So we have total how many number of languages? 1, 2, 21 equals to 18 languages, 19 languages we have. Then scripting languages are JavaScript, Python, Ruby, PHP, Laravel. PHP means Laravel is framework. Okay, it's 878, Perl 666. It's too old. People use it for AI in some cases and criterias. Lua is good at working with automation. Bash, PowerShell, VB script, TCL. VB script we can use in Excel, Visual Basic, to create VB apps. Assembly x86. I have the documentation of x86. You can work on it. x86 let's research on ARM assembly. Okay, we have that already. See, yes, you to come here. आपको यहाँ पे आ जाना है developer.arm. I get this information from Apple documentation. बहुत बढ़िया चीज़ है. अभी जैसे AI का बूस्ट हो रहा है तो हमारे पास में लास्ट एंड यूज़र के लिए वर्क करने वाले जो डेवलपर्स है वो तो काफ़ी सारे हैं, बट डायरेक्ट सेमीकंडक्टर के ऊपर जब वर्क करना होता है हमें, क्यों ना वो मोबाइल हो, IoT के डिवाइसेस होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जो डिवाइसेस यूज होते हैं, अब मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, जैसे आर्म आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है तो उसकी प्रोग्रामिंग भी है. ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं. अगर हमें आर्म लैंग्वेज आती होगी, आर्म डेवलपमेंट लैंग्वेज आती होगी, तो हम लोएस्ट लेवल पे फ्रेमवर्क बिल्ड कर पाएंगे. मीन्स वी आर डायरेक्टली वर्किंग विद द लोएस्ट लेवल and optimizing it at best. Okay, so this is the main motive. Like we can see over powering Android smartphones on device AI with SME2 means what the background of our Android application, Android mobile backend AI is been programmed with ARM programming. Okay, so like Google and ARM are transforming mobile AI with scalable metric extension SME2. Let's see this ARM to supercharge AI on Android, powering next gen features across mobile apps. Just see,
Sharpening from sharpening a photo just before the shutter clicks to real-time background noise suppression during a call or even interacting with an AI assistant. Okay, see, AI assistant offline. This is the main component. If we are programming or AI development directly on ARM architecture, we can make offline AI with more optimization, like CSC, the CPU architecture for the future of AI. ARM 9A is the largest generation of the ARM profile CPU architecture. So this is the latest one as per the official website. Designed to meet the compute efficiency and security demands of AI-driven systems in reduce scalable vector extension and scalable metric extension for high throughput data processing and really management extension for confidential computing, and this enables developers and associate architecture to build scalable, secure and more power efficient platform. Okay. ARM 9 accelerates the processing of large data sets, which is critical for cutting edge scenario like genomics and computer vision. All are possible without the need to recompile software and remains power efficient or improve memory use. So हम इसका मतलब क्या हुआ, हमको जब आम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम लो लेवल के ऊपर उसके हम अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एआई इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली एम्बेड कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, इम्प्रूव मेमोरी मिल सके और पावर इफिशिएंट भी रहे. ओके. और इसमें क्या है की फीचर्स, scalable vector extension optimize the amount of data processed at the once based on available silicon means cheap hardware. With the latest iteration, SVE2 algorithms can process more data on more powerful processor, unlocking more high performance compute scenario without recompiling software. Yes, and scalable metric extension SME2 AI application process large amounts of data, making them powerful intense. ARM SCME2 boosts AI performance efficiency with optimized data handling and metrics computed, improve bandwidth and reduce power and enabling complex real-time AI visuals. So these all things are done locally with lower latency. Okay, and branch record buffer extension is still recent execution, so developing optimization tasks, improving software experience. This is the rare thing. Okay, no one on YouTube will tell you to go and learn ARM architecture and do programming. Okay, even I have to start to work on these systems. So अच्छा रहेगा ये वाला चीज़, बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. और यहाँ पे तुम डायरेक्ट देखो, यहाँ पे तुम सीख भी सकते हो. यहाँ पे तुम्हें रेफरेंस मॉड्यूल मिल जाएगा और ये गाइड जो है इसको आपको डाउनलोड कर देने की. देखो पूरी की पूरी गाइड है लाइक दिस. These are the past informations about the software, understanding on documentations. These are the first steps कि हमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करनी है उसके ऊपर है पहले तो ये. ठीक है. और what you have to read this instruction at first so you can understand कि हमें क्या करना है. The guide describes the fundamental principles of what mathematics and how it is evolved and its profile and that. इसको अगर हमने इस गाइड को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कंप्लीट किया ना, तो एक चीज़ है कि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. और रीड करने का वीडियोस तो इसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो रीड करना बेटर है. ओके, रीड करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वीडियोस नहीं है. वीडियोस भी अवेलेबल तो हैं लेकिन ये ज़्यादा है. जैसे कि ये रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा मॉडल है
आर्म आर्किटेक्चर V7 का, अभी V9 आया है, तो V9 का भी तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है, V7 तक का आ गया जो भी एग्जिस्टिंगली जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसमें यूज़ हो रहा है। ओके, अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है सॉफ्टवेयर। इफ़ यू डाउनलोड द PDF, we getting it. This is simple reference module like this. These all are the backend codes. ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि हम प्रोग्राम करना सीख सकें एम्बेड डिवाइसेस पे। लेकिन एम्बेड डिवाइस वाली कंपनीज भी काफ़ी सारी है, एप्पल, गूगल, IBM, ये सारी कंपनीज हायर करती है डेवलपर्स को, ऐसे इश्यूज नहीं है। अब हमारे पास में अब जैसे कि ये प्रोग्राम्स है, एक्सप्लोर द प्रोग्राम, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी को, ये आर्म डेवलपर्स की, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल डालने का, तो जॉब नहीं भी करते हो ना, नन कर देने का, कंपनी में नन कर देने का, एटलीस्ट तुम रजिस्टर कर पाओगे, तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी। और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तुम किस पर्पज़ के लिए सीखना चाहते हो, सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल गेमिंग को, गेमिंग इन ग्राफिक्स में ऐसा है ना कि तुम इसे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो बहुत, जैसे कि एप्पल का एक्स मेटल है, तो वो उस फ्रेमवर्क के लिए अंडरस्टैंड किया जाता है, मतलब उस टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें सीखना रहेगा। और ऑल ऑफ अबाउ करोगे तो हर एक के ऊपर तुम्हारे पास में न्यूज़लेटर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में है ओके, तो यू कैन रजिस्टर एंड लॉग इन, क्या ये तुम कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोर्सेज भी है, मैं आपको बताता हूँ। यू विल ऑल्सो हैव कोर्सेज टू कंप्लीट, जिससे तुम स्टेप बाय स्टेप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। आर्म AI एनेबल्स रियल टाइम इनसाइड इम्प्रूव हेल्थ चेकिंग, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स को कोई दिखता नहीं है, बट हमें दिखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे, हर एक जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, AI, IoT एवरीवेयर। लाइक जैसी इन AI, मशीन लर्निंग, जेनेटिव AI, जेनेटिक AI, अब ये जितनी चीज़ें हो रही है उसके पीछे जो भी प्रोसेसर्स और ग्राफिक्स कार्ड यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अंदर आर्म आर्किटेक्चर एम्बेडेड इंजीनियर ने कोड किया होगा, ठीक है। लाइक मशीन लर्निंग, लेट्स गो, गेट ओवरव्यू, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब उस मशीन लर्निंग एप्लीकेशन फॉर स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट डिवाइसेस। नाउ मशीन लर्निंग डेटा सेंटर, ये गूगल Xeon CPU powered by ARM accelerates AI infrastructure and XC boots, nice. Consumer devices, voice interface powered by on-device ML. On-device ML don't need to get always internet, just is written eliminating the need for constant cloud connectivity. You can use offline if the embedded AI is enabled. Smarter home automation with edge machine, this is really cool things. Generative and traditional AI on mobile without internet, okay, and even if there is internet with low latency we can work. Learn how ARM enables on-device generative AI experience such as real-time voice and text summarization on mobile CPU. This is the reason you have to learn ARM, okay, and the competition is too less, to be honest. काफ़ी सारा AI का बूम हो रहा है, लेकिन उस AI के बूम में इस लो लेवल के ऊपर कोई भी सीखने नहीं वाला। तो अगर तुम इस लेवल पे सीखते हो तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होएगा। यहाँ पे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि जितने लोग होते हैं ना, जो सब लोग कर रहे हैं वही हमें करना है, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम
अपने हिसाब से सीख सकते हो. ओके, आई टीच इन यूनिवर्सिटी कॉलेज, आई एम स्टूडेंट, यू हैव टू गो हियर. ओके, and there are online courses. Okay, on edx is best website. Okay, you can learn anything for free here. You can learn anything for free and literally free. Let me show you how. Like for example, you want to learn introduction to microprocessor. This is edx course. Just click on advance your course. Okay, or audit course. You don't need to pay $49 if you are able, you are enough capable of purchasing certificate. Definitely pay for it. Elsewhere you can audit the course, so at least you can learn and start the ARM architectures understandings. Okay, this is verified. So the one of the, this is open source. Okay, just imagine this is organization, so everything is free for learning, practicing, and you can master the course. As well as the books have, let's see, this is the book of embedded Linux online course. Okay, now this you have to purchase definitely, but let's see, the book is available. Yes, the book is available. Operating system Linux with Linux and Raspberry Pi. Yes, it's available. Means you can learn the things. Okay, and for offline use, just download it. It would be great. Bookmark it if you think it's important. Back. Okay, PDF has been downloaded. Yes, the whole textbook you have. Means अब अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है, if you have textbook, you don't always needed a video guide to get understand about the topics. आप इन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो इजीली. तुम इसको अच्छे से पढ़ो. इससे 344 पेजेस है, दिन के तुम जितने पेज पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, उतना अंडरस्टैंड करो. ठीक है, जैसे कि ये देखिए मेमोरी सेंट्रिक सिस्टम मॉडल, वट एवर इट इज़, मैं भी पढ़ाई करूँगा. आई विल ऑल्सो लर्न the same thing. There are also some more courses available. Okay, let me show you. Support training, document professional services, education, research, technical training. I think these all are paid. Okay, specifically live instructor trainings are paid mostly. Okay, ARM developers, for ARM developers, if you want to learn let's see, mobile graphics and gaming, start from here. Start from on-demand videos. Start from on-demand videos like this. Okay, and it's available on YouTube. So you can learn. Welcome to this presentation on ray tracing and how. मीन्स आपको सीखने के लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा. ओके, और इधर पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें दी हुई होगी. सी प्लेलिस्ट. यस, अब इसमें जो भी टेक्नोलॉजी आपको अच्छा लगता है उस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करो और अच्छे से पढ़ लो. ओके, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ आर्म आर्किटेक्चर. बहुत अच्छा डिमांड है, इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा.
मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको बस जितना ज़्यादा लिंक्स पे आप जा सकते हो ना, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। आई डेवलप फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। अब जिन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स है, उसका मीन्स कि तुम्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग करना है, तो यहाँ पे तुम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम लर्न मोर करोगे द एप्लीकेशन नेटिव टू आर्म। अब ये एप्लीकेशंस आर्म आर्किटेक्चर पे बनाने हो, तो उसके लिए तुम्हें आर्म आर्किटेक्चर की बारे में समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर आता है, तो इससे तुम सीख सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी अपने हैं इनका रेफरेंस मॉडल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्नल डेवलपर बनना चाहते हो, आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर दो और इधर पे जाओ और यहाँ से आप स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो इमेजेस, पूरे के पूरे डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जहाँ पे तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे। डायग्राम्स भी है और हर एक चीज़ है। सो जो अगर कोई इंस्ट्रक्टर लीड भी होगा ना, तो उसमें यही चीज़ होगी कि वो डॉक्यूमेंटेशन से उन्हें ऑलरेडी आता है, एक्सपीरियंस है, तो वो तुम्हें डायरेक्टली बता देंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से करना है। बट एज ए फ्रेशर्स आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल गेटिंग स्टार्टेड गाइड से शुरू करना शायद बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ को स्टार्टिंग में सेटअप करना हो तो ये ज़रूरी रहता है। लाइक दिस गेटिंग स्टार्टेड। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ है। और बाकी देखा जाए तो आज के लिए इतना आई थिंक इनफ रहेगा। अगर ऑटोमोबाइल की प्रोग्रामिंग करनी है तो भी ये रहा हमारे पास। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। वाह, सो दिस इज़ गुड वेबसाइट। अब इसकी डिमांड रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास में अभी सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे हैं, उससे बेटर है कि कोई आर्म पे फोकस भी करे तो बेटर रहेगा। आर्म आर्किटेक्चर सीखना चाहिए सबको, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इसकी जॉब्स किस तरीके से आती है। ओके, वैसे वर्किंग एट आर्म, अगर आर्म सीख रहे हो तो आर्म डेवलपर वेबसाइट खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें देता है तुम्हें। अपने हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी एप्पल के अंदर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज एक सिंपल सी बात है कि सब लोग, एज हमें मालूम है, एप्पल AR/VR के ऊपर वर्क कर रहा है, गेमिंग पे वर्क कर रहा है। एप्पल इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन गेमिंग, ओके। तो फ्यूचर ये है कि उन्हें वो लोग आगे ज़्यादा चाहिए होंगे जो उनके M3, M4, M5 जितनी भी M सीरीज़ के लैपटॉप्स है, उनके लिए गेम डेवलपमेंट की फ्रेमवर्क्स बना सके, उनके लिए एम्बेडेड चिप के साथ में ऑप्टिमाइज गेम का सिस्टम सेट कर सके, ओके। तो उस चीज़ के लिए हमको डेफिनेटली आर्म डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। वी नीड एन आर्म डेवलपर। अभी हम इंडिया हटा देते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड रखते हैं। लाइक
सेमीकंडक्टर टेस्ट इंजीनियर भी है फॉर एग्जांपल। तो सेमीकंडक्टर टेस्ट इंजीनियर के लिए तुम्हें ये हार्डवेयर सेक्शन है, तुम्हें आर्म टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। हाँ डेफिनेटली दिस ऑल आर मास्टर्स एंड PhD ग्रेडेड, बट येस दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, कुछ कुछ एंट्री लेवल्स भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ तुम इसको फ्यूचर प्रूफ एक लॉन्ग टर्म विज़न अगर लेना हो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म विज़न पे वर्क करना हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चीज़ रहता है। ठीक है, सी यहाँ पे let's see it. You need to know C++, knowledge minimum, PS plus 0 years relevant industry experience. Okay, this is good. Heart of chip and SoCs, IP, micro architecture. In fact, you know hardware. Okay, to get a job at this kind of टाइटल्स। इस तरीके से हमको देखना है। इवन अगर हम गेम परफॉर्मेंस ऑटोमेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट, एप्पल गेम फ्रेमवर्क इंजीनियर, ओके, इफ़ वी सी दिस, अभी जो गेम डेवलपमेंट इंजीनियर्स है उनको बैकएंड बहुत अच्छा आना चाहिए, तो वो काम कर पाएगा ऑप्टिमाइजली। ओके, ऐसे ही बेसिकली एम्बेड इंजीनियर्स ऑफ आर्म embedded engineer in Bangalore. Let's see the firmware engineer, the role like firmware developer. Okay, where it is, कहाँ गया ये? हाँ, ट्रेडर्स सी, यहाँ पे कंपटीशन कम है। अगर तुम आर्म डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी हायर लेवल ऑफ लो मींस हायर लेवल ऑफ स्किल सेट को तुम टारगेट करते हो ना, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम मिलता है। देखो 3 दिन में सिर्फ 44 लोगों ने क्लिक फॉर अप्लाई किया है, और अगर उसके जगह कोई दूसरा रोल होता तो अभी तक कितने लोगों ने कर लिया होता ये चीज़। ये देखो, सी इफ़ यू आर गुड एट दिस, और सिर्फ 3 साल का एम्बेडेड एक्सपीरियंस मांग रहा है ये, ठीक है, और तुम्हें अगर ये चीज़ें आती होंगी तुम इस जॉब मार्केट को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कंपटीशन कम मिलेगा क्योंकि लोगों को आता ही नहीं है। अगर तुम कॉलेज में भी हो तो आप आर्म के ऊपर फोकस करो। ये एक ऐसा जॉब है जो फ्यूचर के अंदर कभी भी AI तुम्हारी जॉब नहीं खा सकता। C++ के अंदर बैकएंड प्रोग्रामिंग को AI को ट्रेन करने में भी हालत ख़राब हो जाती है, वाट लग जाती है। बहुत अच्छे से तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके C++, जावा ऐसी लैंग्वेजेस या आर्म लैंग्वेजेस के ऊपर AI करेक्ट कोड जनरेट करके देता है। उसमें तुम्हें मैन्युअली ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, उसमें तुम्हें आता होगा। ऑन डिमांड वीडियोस देख लो, आर्किटेक्चर्स को समझो, ठीक है, तो तुम काफ़ी कुछ समझ लोगे। अब NVIDIA के जो चिप्स है तो उसके प्रोसेस ग्राफिक्स कार्ड के पीछे का जो कोडिंग हो रहा है वो भी तो आर्म डेवलपर कर रहा है ना। सो ये चीज़ है, तुम कर सकते हो। जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, only 100 applicant in 5 days. This is very less number. Okay, this is very less number। और उसके साथ में थोड़ा बहुत CI/CD और डेफिनेटली तुम्हें क्लाउड डेवऑप्स तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो इजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, सो आज का टॉपिक था आर्म डेवलपमेंट के ऊपर। हम बाद में बाकी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी सर्च करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से हम बताएंगे कि कौन कौन सी कहाँ से तुम रिसोर्सेज को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और किस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। मीन्स अगर तुम्हें करना है तो तुम इसे, इतने सारे टूल्स है, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रोल बेस अभी सबसे ज़्यादा फेमस क्या है अपना जावा, सब उससे भी ज़्यादा पाइथन, रूबी डेवॉप में यूज़ होता है, स्विफ्ट अपना डेफिनेटली मैक के लिए इसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोटलिन क्रॉस प्लेटफॉर्म कर सकते हो, जावा का ही बड़ा भाई है, मतलब बड़ा नहीं, नया भाई है, एडवांस। गो डेवॉप के लिए ब्रश डेवॉप बैकएंड, सी शार्प, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट। बस अभी अपन ने आम देखा ना, पर बाकी सारी चीज़ें भी बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है डिबगर पे। आई होप ये वीडियो लेंथी है, काफ़ी डिटेल्ड है, सिंपल ओवरव्यू डिटेल्ड है। हम आगे जितने भी रिसोर्सेज है, स्टडी रिसोर्सेज है, उनके ऊपर हम अपलोड करेंगे वीडियोज़। स्टडी रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रीड किया जाता है और किस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं विद गुड स्केड्यूल्स। ओके, और कुछ ऐसी जॉब मार्केट जो इंडिया के जो हाइप मार्केट है ना, जितनी भी हाइप बनी हुई है उससे पूरी अलग होगी। सो या थैंक यू। और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। जस्ट आई स्टार्टेड, आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड डू रिसर्च ऑन थिंग्स। तो हम इस तरीके से नई नई एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे एंड पढ़ाई करते रहो।